Switch on your cameras, please, everyone. What's your name? Kiran. Okay. So, Kiran, which school you're from? JD Goenka. And what are your marks in 11th maths? No, only maths marks. I'm interested. Yeah, 100, 80. On 80, 64. Right. Shania, your marks in 11th maths? 60 on 80. And 53.5 on 80. Fine. What about you? How much you got in 65.5 on 80? So, Aditi, switch on your camera. Arshia. So, you name your marks in maths in 11th class because that will, decide the pace of the class. Everyone. Start with the Arshia. Yes, sir. Yeah, My name is Arsha Kaur and I scored 60 on 80. 60 on 80, right. Next, Aditi. Is it Aditi or Ira? Hello. Yes, sir. Yeah, Aditi. Your Yes, mark. sir. My name is Aditi Agrawal. I'm from Saint National School Okay. and I scored 50 on 80. Ira. So 60 on 80. Which school you're from? So GEMS International School. That's all right. Anuj. Sir, I was non-attending in +1, Okay. so I haven't given exams. Right. Ryan. I scored 74 out of 80. What? I scored 74 out of 80. Okay, that's good. Yes, Ira. Sir, I attended my school until midterm, and then after that I joined dummy. So Okay, these are my midterm marks. fine. Meera. Sir, I got 80 on 80. eh, How many? 80 on 80? So, 80 on 80. Yes, That's sir. great. Good, good. Devishi. So I got 68 on 80. Good. That's nice. कोई बच गया? अविका. 62 on 80. 62 on 80. Right. So that's your introduction. My introduction is my name is Sanjay Bhatnagar. As you know, I am BTech Mechanical from IIT Roorkee. I teach physics and maths, and I'll be teaching you maths here for JEE Arc paper 2. You all have your target set, which is SPA Delhi, right? So this is your target. And as you know, the paper is for 400 marks. It has 200 marks for aptitude, 100 marks drawing, and the remaining 100 for maths. Fortunately, the syllabus of maths has, drastically reduced over the last 2 years. पहले COVID की वजह से, and after that, they have rationalized the syllabus. Earlier, I used to teach, suppose the syllabus of CBSE is 100, I used to teach 40% extra because so many new things were there, which were not taught in, normal CBSE, but it was their entrance. But post-COVID, they have, this part is no more there. And moreover, they have reduced the syllabus by 30%. So presently, what is studying in 12th class or even 11th class, maths, physics, and chemistry, it is just 70% of what was 2 years earlier. And the same syllabus is there in JEE also. Now, to get into SP Delhi, your marks should be 300 plus. These kind of marks are needed.
to get into SP Delhi. Aptitude, you can score 190, 195, even 200 also. The range of 190 to 200 if you seriously study for the entire 1 year session. This is quite possible. It is quite subjective drawing. Still, you can hope to get 50 to 70 marks in drawing as well. So with the help of aptitude and drawing, you should be able to get around these marks, 240 plus. This should be your target. But 300 plus कैसे आएगा? उसके लिए maths is a must. You have to somehow get 60 plus marks in maths. And the problem with maths is that, even though the syllabus has reduced the level of questions, even though not very high, I used to be 2 years earlier, but the problem is the questions are very lengthy. The questions are lengthy, they take time. So we have to decide which question to answer, which not to answer. And of course, there's a negative marking also. So one question here and there where you're getting, +4 marks, and by chance you make a mistake, silly mistake, you lose 1 mark. Overall, you lose 5 marks. And 5 mark का मतलब होता है your rank shift by 500 to 600. ठीक है? किसी भी entrance में 5 marks as far as JEE is concerned, your rank would shift by 5 to 600. मतलब अगर 180 तक you're getting SP Delhi and one question incorrect makes your rank to shift 680. That means you are out of contention from, SP Delhi also, SP Bhopal also, maybe Vijayawada as well. So we have to be very choosy which question to answer, which not to answer, how to apply shortcuts, which, we'll learn over a period of time here in the classes. I'll be doing the basics first for each chapter. After that, we'll do some subjective questions, then MCQs and shortcuts also. So that will be the strategy. Then there'll be regular tests, MCQs. And if you have any doubt, you can ask me during the class, like the topic I'm teaching in the class. Any doubt, even you feel that 2 plus 2 is not 4, we'll discuss in the class, no issue. If you have any extra doubt, you can always WhatsApp me that question. I'll, answer later. अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि which topic, how many questions have been there in the previous years. So first group of chapters, if I talk about sets, relation, function, ये हमने 11th में भी किया था. Limits, continuity, 12th का पार्ट आ गया. Differentiability, differentiation, and application of derivatives, AOD. This is one group of topics from where you come across 4 to 5 questions in JEE. लिख लेना so that you have an idea. थोड़ा plus minus हो सकता है, but this is how for the last many years questions आ रहे हैं. So sets, relation, function, limits, continuity, differentiability, differentiation plus AOD. AOD का मतलब application of derivatives. अभी जनरली स्कूल्स में क्या शुरू हुआ होगा? रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन. क्या हुआ है? स्टार्ट मैट्रिसेस, inverse table. All right. So 4 to 5 questions from this. It could be 3 also, but not more than 5. The second most important chapter will be 2D geometry. This is entirely 11th class. Straight line. Pair of straight line is excluded now, plus conic section. Straight line and conic section. And from this, 3 to 4 question would be
definitely there. And the best part of this chapter is that the level of the question is not very high. I mean, in the sense, degree of difficulty may not be very high. So you have all the possibility to answer these questions correctly. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि इस साल जिसके 0 मार्क्स थे मैथ्स में उसका भी 60 परसेंटाइल था. समझ रहे हो इसका मतलब? 60 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि even if somebody got 0 marks, percentile 60, matlab he is above 60% people. So that means so many students are getting negative marks in maths as well. Even though the highest marks, this in the second attempt is 92. The student, Nonit, he's getting 92 marks in this year's paper. So probably his percentile would be, 99.99 types. And that is a percentile you need for all the 3 subjects together to get into SP Delhi. This is your target. Maybe more, maybe 100 percentile. If you get 100 score, 100 percentile, that means your rank would be, 1, 2, 3, or 4. So keep this target in mind, which is quite achievable. Nothing is impossible. Then we have complex numbers. Complex number बिल्कुल भी complex नहीं रहा because बहुत सारा syllabus delete हो गया इसका. There'll be one question for sure. Earlier, complex number बहुत detail में हुआ करता था, but now only A plus iota भी, that's it. One question from complex number. Sequence series, again 11th topic. Sequence series maybe a lot of syllabus has been deleted. Harmonic progression, AGP, spatial sequences, all these been deleted. It's no more there in the syllabus. But still I touch upon few questions from spatial sequence. And from this chapter also, one question would be definitely there in JEE. PNC, binomial. Binomial से भी काफी सारा syllabus delete हुआ है. You have only those binomial expansion where you have positive integral index, a plus x to the power some positive number. उससे पहले lot many things were there. A plus x to the power, fractional index, negative indices, all that stuff is not there. And probability. Probability was there in 11th also, it's there in 12th also. यहाँ पे 2 से 3 questions आएंगे. And these, topics I'll discuss in one go, like in sequence. But if I start, suppose today from set relation function, then I'll end up till AOD. उसके बाद we move to 2D geometry and, whatever, like that ways. So again, sequence series के question easy होंगे, तुम लोग कर पाओगे. Complex भी बहुत easy होगा. And even PNC also because काफी कुछ syllabus पुराना. But problem is थोड़ा lengthy होंगे, तो that you can practice more and more questions and वो problem sort out हो जाती है. Matrices, determinant तो almost हट ही चुका है. Hardly anything is there. So matrices determinant से there'll be one question. Trigonometry. Trigonometry also, equations been deleted. Solution of triangles have been deleted. We have only trigonometric functions and inverse trigo. 1 से 2 questions यहाँ से आते हैं inverse trigo से. There'll be 25 questions in total. 20 questions MCQ होंगे. 5 questions would be integer type, where options are not there. And the answer would be one of the integers, those kind of questions would be there. But negative marking सभी में होगा.
नेगेटिव मार्किंग +4 और -1 होता है. For correct answer, you get +4. For incorrect, you get -1. 25% negative marking is there. Statistics. Again, this is something you can definitely score. One question unfailingly. एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आएगा और उसको तुम डेफिनेटली करेक्टली आंसर कर पाओगे. इस साल भी there was one question in the second attempt as well, first attempt also, but only problem was quite lengthy. बहुत कैलकुलेशन थी. मीन दिया हुआ था, there were two unknowns, and then deviation was being asked. So a lot of calculations were there. That was the only issue, but वो हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको टैकल करना होता है. टाइम को कैसे एनहांस करना है. Like how much time you need to give to maths in JEE, because you have 3 hours. You know this ना, 3 hour का पेपर होगा. एप्टीट्यूड अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो 30 to 35 मिनट्स में एप्टीट्यूड हो जाता है. It'll take just 30 to 35 minutes to finish your aptitude. And you have done 50% of your 400 marks, because this is for 200 marks. 30 से 35 मिनट में 200 मार्क्स का तुम्हारा फिनिश हो गया है. उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी हमेशा, एप्टीट्यूड पहले करोगे फिर मैथ्स पे आओगे. मैथ्स के लिए तुम्हें कम से कम 90 मिनट देना होगा, अदरवाइज मैथ्स नहीं हो पाएगा. एंड बाई चांस अगर तुम इमोशनल हो गए कि नहीं पहले ड्राइंग कर लेते हैं, फिर सारा टाइम ड्राइंग में लग जाएगा, मैथ्स में यू विल वोंट बी एबल टू कम बैक. तो जो स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट है. विल फॉलो दिस AMD. एप्टीट्यूड के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद ड्राइंग. अदरवाइज यू वोंट गेट टाइम, इनफ टाइम फॉर मैथ्स. ऐसे मूव करना है तुम्हें. इवन इफ यू डोंट लाइक मैथ्स, योर फोर्टे इज नॉट मैथ्स, में बहुत कम मैथ्स है, फिर भी हमें मैथ्स को 90 मिनट बैठ के उसको आंसर करना है क्वेश्चंस को. यू फर्स्ट गिव 5 minutes टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, डिसाइड विच क्वेश्चन यू वोंट अटेम्प्ट. उनको बिल्कुल भुला दो, देयर इज नो नीड. उनको नमस्ते बोल दो. उन्हीं क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना जो हमें आते हैं. लेट मी टेल यू दिस ईयर अगेन, एवरेज अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट वाज 5, अराउंड 5. लोगों ने, किसी ने 4 किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10, किसी ने 21 भी किए हैं. द स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 92 जिसके आ रहे हैं, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए मैथ्स के. तो वेरीज पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज द टाइम यू नीड टू गिव टू मैथ्स. तो पहले 5 मिनट में जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, डिसाइड विच क्वेश्चन यू वोंट अटेम्प्ट, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं ऑलरेडी किए होंगे. सिमिलर क्वेश्चन वुड बी देयर. क्वेश्चन को पढ़ के लगा ये तो मेरे को आता है टाइप्स, तो देन you decide, start with the question where you know the answer, you feel you can answer that. और स्ट्रैटेजी ये होगा कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया उसको पूरा करना है. ये नहीं कि उसको आधा किया छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पे आ गए, फिर आधा किया फिर छोड़ दिया. इट इज MCQ, यू हैव टू आंसर इट कंप्लीटली, तब जाके मार्क्स मिलेंगे. अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं होते, स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते. कंप्यूटर से सिर्फ ये देखेगा तुमने क्या मार्क किया है, क्या आंसर किया है. जो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है उसको पहले से चूज करके डिसाइड करना होगा और उसी को पूरा करके आंसर करना होगा. सो 90 मिनट्स दिस, देन यू मूव टू ड्राइंग. ड्राइंग में 2 क्वेश्चंस होंगे. यहाँ पे भी यू हैव टू बी केयरफुल. डोंट आंसर वन क्वेश्चन एंड कीप ब्यूटिफाइंग दैट एंड टेक लॉट ऑफ टाइम. थोड़ा एक क्वेश्चन करो, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करो, फिर दोनों, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है दोनों को ब्यूटिफाई कर लो. अगर एक ही क्वेश्चन तुम करके बैठ गए, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिला, तो एक क्वेश्चन में 50 से 50 नहीं मिलेंगे, 40 से 30 मिलेंगे. उससे बेटर है यू ट्राई बोथ द क्वेश्चंस, दोनों को थोड़ा थोड़ा करके, देन यू ब्यूटिफाई देम. बिकॉज इंडिविजुअली अगर दोनों क्वेश्चन किए तो हमें मार्क्स फिर भी अच्छे मिल जाएंगे. तो स्ट्रेटजी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कैसे आंसर करना है, हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, बिकॉज यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स. सो एंड योर January अटेम्प्ट वुड बी द फाइनल वन. उसको मान के चलो कि उसी में हमें अच्छी रैंक लानी है. उसके 2 फायदे होंगे. एक फायदा ये हो जाएगा कि
अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सपोज 99.9 आना आ गया, देन यू डोंट वरी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, देन यू कंप्लीटली गो अहेड विद योर बोर्ड, बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा इट विल बी इन बिटवीन योर बोर्ड्स। हो सकता है आज एंट्रेंस हो, कल तुम्हारा बोर्ड फिजिक्स हो या कुछ इंग्लिश हो या कुछ भी हो सकता है। सो ट्रीट द फर्स्ट अटेम्प्ट एज द फाइनल वन, ठीक है। हालांकि उस टाइम प्री बोर्ड भी हो रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट इज, सब लोग ऐसे ही करते हैं। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। ट्वेल्थ इज नॉट द टाइम टू 11th में तुमने बहुत मस्ती की, तुम लोगों ने सबने की, सब करते नहीं, पढ़े रहे, वर्कड हार्डली। अब पढ़ना है और वर्क हार्ड करना है। 11th में था वर्क हार्डली, 12th में वर्किंग हार्ड। 11th में था पढ़े रहे, 12th में पढ़ना है। दिस इज स्लाइट डिफरेंस जो तुम्हें लोगों को करना पड़ेगा। इतना पढ़ो ताकि घर वाले परेशान हो जाए, क्या हो गया इसको, हम्म, गरिमा को क्या हो गया, बीमार हो गई, इतना पढ़ती है तो पढ़ी रहती है, लास्ट में पढ़ी रहती थी अब पढ़ने लग गई। सो दैट काइंड ऑफ स्टडीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ईयर, ठीक है। एंड यू कैन डू इट। अगर तुम्हें नहीं लगता, अपने पे विश्वास नहीं है, तो नाइकी की टी शर्ट आती है ना, उसमें लिखा होता है जस्ट डू इट, वो पहन लेना और स्टडी टेबल के आगे लिख देना टॉप 10 रैंक एसपी दिल्ली 2026। ओके, अब देखो कुछ बचता है इसमें, जरा देखना। वेक्टर 3D, वी कांट फॉरगेट दिस। वेक्टर 3D में भी लास्ट ईयर से बहुत कुछ सिलेबस डिलीट हो चुका है। अर्लियर स्फीयर यूज्ड टू बी देयर इन 3D, प्लेन यूज्ड टू बी देयर इन 3D, वेरी डिटेल्ड, वो अब सारा डिलीट हो चुका है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इन बुक्स यू माइट फाइंड दीज क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। यू माइट कम अक्रॉस क्वेश्चन जिसमें कि स्फीयर के क्वेश्चन होंगे, प्लेन के क्वेश्चन होंगे, उनको देखते ही नमस्ते बोल देना है, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस एनी मोर। यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज आर डुएबल, तुम लोग कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, बिकॉज हमें वो क्वेश्चंस देखने जो हम कर सकते हैं, राइट। अभी तो हमारा टारगेट ही है, हमें सब कुछ करना है, 25 से 25 क्वेश्चन हमें आंसर करना है, बट स्टिल विल बी प्रैक्टिकल कि कहाँ पे हमारा चांसेस ज्यादा है। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आएगा, टाइम लगेगा बट हो पाएगा। वेक्टर 3D, यस, ऑल 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली, नो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज ये थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स वेरी इजी सीक्वेंस सीरीज कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है प्रोबेबिलिटी में। मैट्रिसेस बिल्कुल इजी होगा, ट्रिगो इनवर्स बहुत सिंपल आएगा। एंड देन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट हम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन करेंगे क्लास में 12th इस इंटीग्रेशन के। differential equation, once I start this you'll be very comfortable in your school syllabus also. Differential equation, differential equations and AOI। किसी को पता है AOI क्या होता है? अनुज, AOI का फुल फॉर्म कौन नहीं बताएगा? बता। मेरा Application of integrals, ऐसा? yes, area, these, so this is very very important, 4 to 5 questions। Integration means indefinite integral, definite integral, AOI मतलब area application of integrals, and this differential equation। ये 4 to 5 questions will be there, but इसकी only problem is that कि इसका level would be little higher, तो हो सकता है वहां पे हम इसकी क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाए, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी टफ। सो दिस इज मोर और लेस द पिक्चर, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है। ट्रिगो मैंने ले लिया था ना, हाँ ठीक है। और कुछ बचा है, जरा देखो, नजर डालो। एनी टॉपिक ऑफ 11th क्लास विच आई मिस्ड आउट, लग रहा है तुम्हें? शनाया, मैथ्स, हाँ बोलो।
हाँ, यस, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से कुछ नहीं आएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन हट चुका था, वो भी नहीं आएगा. Quadratic is there, yes. One question from quadratic equations. ये भी doable होगा. Till last year, what I used to do that I used to first finish 11 syllabus, then move on to 12 syllabus. But then I've realized that, some of you guys face problem when, I finish 11 syllabus by August. कि स्कूल में 12th भी हो रहा है, वहाँ पे मंडे टेस्ट भी हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म भी आ गया है. तो व्हाट आई डू इज आई मिक्स, आई डू सम टॉपिक्स ऑफ 11th and then I'll do some topic of 12th, and that's how I'll move. Like I can start with set relation function, which is 11th part, and then the moment I start with limits, continuity differential, will be covering your 12th also. So you do reasonably well in your school level also, because everything I'll be doing is from the basics to that level. पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे. एमसीक्यू में हम मेथड से भी करेंगे, हम शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे. दैट वेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. एनी डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. एक मोटा सा रजिस्टर बना लेना मैथ्स के लिए, ठीक है. एंड वॉट एवर आई राइट ऑन द बोर्ड, राइट दैट. ये सारी क्लासेस ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगी, सो यू कैन revise from the video. You can see the videos as many times as you want. Plus तुम्हारी नोटबुक तो होगी, उसमें सारा होगा. So write each and everything. That notebook of yours would be like everything for the entrance exam. उसमें सब कुछ होगा, 90% वहीं से आएगा. तो एक थिक रजिस्टर लेना, नोटबुक लेना, उसमें सब कुछ लिखना है तुम्हें, ठीक है. So let's start with sets, relation, function, and so on. We'll go in this sequence: set, relation, function, limits, continuity, differentiability, differentiation, and application of derivatives. What is a set? Tell me. अनुज, सेट क्या होता है बताओ. A well-defined collection of numbers. ओके, नंबर्स नहीं होगा, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है. बिकॉज जरूरी नहीं उसमें नंबर ही हो सेट में. इट कुड बी एनीथिंग. सपोज I ask you, all the good student in this class, raise your hand. All good student in this class, raise your hands. कोई है ऐसा? किसने? कोई बोल ही नहीं रहा. देविशी, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट. रायन, गरिमा, इज अ वेरी सब्जेक्टिव, है ना. सो a set is well defined collection of objects or elements. लिख लो. A set is well defined. A set is well defined collection of objects or elements. Now, अब क्वेश्चन ये आता है well defined का मतलब क्या है. जैसे मैंने पूछा था, all the good student in this class, it won't be a set because good student is not well defined. Well defined का मतलब क्या होता है? Well defined का मतलब ये हुआ कि some characterizing property by virtue of which you can either exclude or include a given element. जैसे कि if I ask you how many of you who got 90% or more marks in 10th class, बताना जरा. Raise your hands. How many of you got 90% more in 10th class? 90% नहीं थे 10th में? शनाया, गरिमा, 80 रह गए थे. 89. ओके. अविका, मिहिरा, देवशी, अर्शिया, अदिति. गुड, नाइस. So this would be a set. But if I ask you how many of you got 90% marks and above in class 11th? Mihira only. So this is a singleton. If I ask you how many of you got 95% more in 11th class? Mihira. क्या बात है मिहिरा, तुमने तो कमाल कर दिया. चलो मैं बोलता हूँ 99% मोर इन 11th क्लास, तो वो नल सेट हो जाएगा.
But of course, I'm sure that this year in 12th class, most of you guys gonna get more than 90%, 95% marks. वो बात पक्की है. तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ some characterizing property by virtue of which a given element can be included or excluded from the set. ठीक है? So that is the meaning of set or well defined also. Set को we can represent in two ways. One is set builder form. सेट्स वाले टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करना. इजी चैप्टर है ये, इजी टॉपिक है, बट इससे भी क्वेश्चंस आते हैं जेई में. ठीक है? सो इन एंट्रेंस यू कांट से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पे बोलूंगा वो तुम्हें शायद पहले से ही आती हो, बट हमें फिर भी उसको करना है. वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. किसी भी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, और एक और नाम है इसका. जैसे तुम लोगों के 3-4 नाम होते हैं ना, एक घर का नाम है, स्कूल का नाम, फिर दो से एक और नाम रख देते हैं. इसके भी 3 नाम है: रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड एंड टेबुलर फॉर्म. So any set can be represented by two ways. One is set builder form, second is roster form, listing method और tabular form. लिख लो. हर चीज जो बोर्ड पे लिखी है वो लिखते जाना है. Then you don't have to refer to any book. Now what is set builder form? Yes, set builder form में हम set को represent करते हैं by writing some of its characterizing property. लिख लो. In set builder form, a set is represented by writing some of its characterizing property. In set builder form, a set is represented by writing its characterizing property. जैसे कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे. सपोज आई राइट अ सेट ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल. So I've not listed the vowels, but I've just written some characterizing property. So this is set builder form. Another way, set B, x such that x belongs to natural number, x is less than 1. Another set, yet another set, x such that x square minus 1 equal to 0, x is a whole number. This is set builder form. Set D, x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 5. So all these are set builder forms when you write some of the characterizing property of the set. Another set x such that x square plus 1 is equal to 0. X is a real number. Set n, x such that x is a natural number. तो जब किसी सेट को उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करोगे तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड और टेबुलर फॉर्म. इन रोस्टर फॉर्म we represent a set by listing some or all the elements of the set. लिखो. In roster form, a set is represented by writing some or all the elements of the set. In roster form, a set is represented by writing some or all
एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। जैसे कि ये जितने भी मैंने सेट्स लिखे, कैन यू राइट दीज सेट इन रोस्टर फॉर्म? करना एक काम, राइट ऑल दीज सेट्स इन रोस्टर फॉर्म एज वेल। लिखो जो भी सेट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उन सब का रोस्टर फॉर्म। जैसे कि मैं बताता हूँ, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा AEIOU, राइट? सो यू राइट रोस्टर फॉर्म ऑफ ऑल द sets represented on the board, written on the board. करो आराम से, there's no hurry. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेधड़क, बिना हिचकिचाहट से, ठीक है। इफ यू फील दैट 2 + 2 इज नॉट 4, विल डिस्कस इन द क्लास। डाउट नहीं रहना चाहिए। सेट बी का क्या होगा? 1 से छोटा कोई नेचुरल होता ही नहीं, नेचुरल नंबर। null, नल सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, कई सारे नाम है इसके। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। कौन सा? हाँ, एक मिनट। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। सी का क्या होगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो +-1 आएगा, बट -1 इज नॉट ए होल नंबर। W representing whole number, so set of whole number -1 नहीं आएगा, so this would be only 1. D क्या होगा? Yes, करीमा आ जाओ, बोर्ड पे कर दो। XD लास्ट ही लिखो बोर्ड पे। तुम्हारा नाम तो गरिमा है, आ जाओ जल्दी से। जो ये बोलेगा मेरे से क्यों करा, उसी से कराना पड़ता है। नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, परफेक्ट, बरोबर है। नेक्स्ट लिखो, x² + 1। कौन से? हाँ लिखो ना सारे, राइट। अब सारे सही हैं गलत है पता नहीं मेरे को, इसमें कोई गलत नजर आ रहा है किसी को? यस, x² + 1 = 0। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, x² = -1, तो तुम्हारा दोस्त आयोटा आ जाएगा। ये दिस इज + आयोटा विच इज नॉट ए रियल नंबर, तो दिस विल बी अ नल सेट, राइट? एम्प्टी सेट। रिमेंबर द नल सेट में अगर तुमने सपोज आई राइट मोर सेट्स ऑन द बोर्ड, x मैंने लिख चुका हूँ, y मैंने लिखा सपोज 5, आई एम राइटिंग फ्यू मोर सेट्स, z, आई एम राइटिंग फ्यू मोर सेट्स। ठीक है, कुछ और सेट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए। Now, in a set, repetition of elements and the order in which they are written is meaningless. ठीक है? In a set, repetition of elements and their order is immaterial. So now we'll define a term called cardinal number of a set. कोई बताएगा? Avika, what is cardinal number of a set? क्या हुआ, अविका गायब हुए? रायन? So the number of elements in a set. हाँ,
The number of elements in a set. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, एस का कार्डिनल बताओ कितना होगा फिर? Sir, 2. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट. लिख लो, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट. Cardinal number of a set is number of distinct elements in the set. Cardinal number of a set is number of distinct elements in the set. तो जैसे कि सेट ए बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, तो उसका कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे? n ऑफ a इज इक्वल टू कितना है इसका कार्डिनल नंबर? हाँ, राइट. तो एक काम करो, हर सेट का कार्डिनल नंबर लिख लो. शनाया, किन्हीं 5 सेट का कार्डिनल बोर्ड पे लिखो, उसी के सामने लिख दो. एनी 5 सेट्स. हाँ, जो भी तुम्हें लगता है उसका लिख दो. मीरा कर लिया? हीरा डन? Done, sir. ओके, अर्शिया Done, sir. हो गए? चलो एक और लिख दो, बी का भी तो लिखो. एम्प्टी सेट, नल सेट, जीरो. राइट, रिमेनिंग लिखो आराध्य. बताओ किसमें? हाँ करेंगे. नहीं, हम तो कार्डिनल नंबर की बात करें. कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. सो जैसे ये सेट है, ये नल सेट है ना, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. एम्प्टी सेट और वॉइड सेट में देयर इज नो एलिमेंट. बट अगर तुमने 5 को उसके अंदर लिख दिया सेट के अंदर, इट बिकम सिंगलटन. जैसे ये है, ये गलत है. इट विल नॉट बी जीरो. y का कार्डिनल नंबर विल नॉट बी जीरो. ये फाउल हो गया. n ऑफ y वुड बी 1. ठीक है, परफेक्ट. आगे बढ़े. कौन सा? बी वाले का तो जीरो हो गया. और ये वाला, ये इसका इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड. इसका कार्डिनल नंबर विल बी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी. ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो. कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मतलब हुआ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट. हमें ये मालूम है सेट में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट, इज इनसिग्निफिकेंट. ऑर्डर इज ऑल्सो इमटेरियल. ठीक है, अब हम आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट लिखो, इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट. व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, मीरा? So infinite number of elements. Yes, a set whose cardinal number is not defined, है ना? A set whose cardinal number is not defined or infinity is called infinite set. For example, set of natural numbers will be infinite set. Set of whole numbers will be infinite set. Set of real numbers would be infinite set. Set of integers would be infinite set. Set of rational number would be infinite set. All these are infinite sets. और finite set का क्या होगा? Cardinal number is defined, or we can say that we can list some or all the elements of the set.
फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो, बहुत टाइम लगे, बट येट वी कैन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट। तो जो बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं, कितने सेट्स इनफाइनाइट है, कितने फाइनाइट है? आई थिंक एक ओनली एक ही सेट है जो कि इनफाइनाइट है ना, नेचुरल नंबर वाला, राइट? यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई, सारा ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, ठीक है? इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन लिखो। Sets are said to be equivalent. Sets are said to be equivalent if they have same cardinal number. If they have same cardinal number. बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, वो सेट्स जो तुम्हें लगते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट है उनको एक ग्रुप में लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। राइट ऑल द सेट्स विच आर इक्विवेलेंट रिटन ऑन द बोर्ड। इसमें कुछ सेट मैं और ऐड कर देता हूं। ठीक है, करो अब। राइट all the groups of set which are equivalent। सारे लिख लो। कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं? और उनका कार्डिनल नंबर भी लिखना है उसी के सामने। हो गया? वो सारे सेट जो कि इक्विवेलेंट है, पहला ग्रुप लिखो। ग्रुप ऑफ सेट विच आर इक्विवेलेंट, उनका कार्डिनल नंबर भी लिखना। All the sets which are equivalent along with their cardinal numbers. So the first group she says is ADP and the cardinal number says 5, right? एक और ग्रुप लिखो। क्या हुआ? नीचे से फोर्थ फ्लोर पे चले जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, नीचे वाले पे फोर्थ पे चले जाओ। CXCNY, ठीक है? तो CNADP, ए का 5 है, नो डाउट, इसका भी 5 है, परफेक्ट। एंड पी इज ऑल्सो 5, राइट? और कुछ है जिसका 5 है? इवन जेड का कितना था? 4 था। अच्छा, क्या मिसिंग था इसमें? यू इज मिसिंग, है ना? ऑल राइट, ठीक है। सी और वाई सिंगलटन थे, उनका एक 1 हो गया। सर क्या? आर भी होगा। किसके साथ? सर सिंगलटन वाले सी में एंड आर भी वाई। होगा। अच्छा अच्छा, ऑल राइट।
that is C, Y, and R. All this group has cardinal number कितना? 1. 1. Even the null set में क्या क्या आ रहा है? X is a null set और कुछ और है null set? B. Hmm? B. D, B. B, right? Bombay. Yes. B for Mumbai. So another set of B is there and So N, W, and I, infinity. यहाँ there is a question mark. अभी उस पे हम आते हैं वापस, ठीक है? Okay, sir. तो B के साथ कौन सा था null set? B, X. hmm? X. X ना, right? These are, इसका cardinal number 0 है. So all null sets are equivalent because they don't have anything inside them. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई I का कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी है, W का भी कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी है. सो कैन वी कॉल देम इक्विवेलेंट सेट्स? नो, बिकॉज उनका जो कार्डिनल नंबर है दैट इट सेल्फ नॉट डिफाइंड. लिख लो नोट करके, सेट्स whose cardinal number is infinity, sets whose cardinal number is infinity, whose cardinal number is infinity are not equivalent sets, are not equivalent sets. ठीक है? Even though they have the same cardinal number, but cardinal number itself is not defined, तो उसको हम equivalent set नहीं बोल सकते. Right? Next लिखो equal sets. Next is equal sets. Equal set की definition लिखो. Sets which have same cardinal number and same elements. Sets which have same cardinal number and same elements are called equal sets. Sets which have same cardinal number and same elements are called equal sets. अब जरा इक्वल सेट्स बताओ, कौन कौन से इक्वल सेट में नजर आ रहे हैं? Sir, वैसे जो null sets होंगे, will they be equal sets? यस, Okay, तो sir. एलिमेंट ही नहीं है तो सारे खाली हैं वो. Yes, sir. उसके अलावा देखो बी, डी और पी. Yes, D sir. is 1, 2, 3, 4, 5 and P is also 1, 2, 3, 5. Perfect. D and P are equal sets. D and P are equal sets. सारे नल सेट्स भी इक्वल हैं कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है. इवन दीज आर equal sets. So can I say that all equal sets are equivalent? Anuj, can we say that all equal sets are equivalent? No, sir. है ना? But vice versa true नहीं होगा. Two equal set will be always equivalent, but vice versa may not be true. लिख लो. Equal sets will be always equivalent, but vice versa may not be true.
Next is, suppose we have a set A which contains elements 1, 2, 3. ठीक है, कोई set A है जिसका elements है 1, 2, 3, and I'll write few more sets B which contains 1, C which contains 2 and 3, D is a null set, set E is there which contains 1 and 4, set F is there which contains 2, 5, 3, set G is there which contains 1, 2, 3. एक बार सारा सेट लिखो. अब let's consider set A and the sets written over here. Set A का कार्डिनल नंबर कितना है? 3. Now, if I talk about set B with regard to A, what can you say? Can I say that set B is contained in A? Yes. Yes, है sir. ना? Set B is contained in A. What about set C? इसमें 2, 3 Yes, है, sir. वो भी contained Yes. है. ये तो बेचारा null set है. ये तो होगा ही. What about E set? No. No. Why? Because Because all the elements are not present. yes, 4 belongs to this symbol for belongs to. वैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सारा. क्या नाम है इसका? It is belongs to. The 4 belongs to E, but 4 does not belong to A. So we can say that E is not contained in A. What about F? F में 5 आ रहा है जो कि F का पार्ट है, लेकिन 5 is not belonging to set A. So again, F is not. What about G? Yes. So this is called subset. Now we're discussing subset and superset. हम बात कर रहे हैं सबसेट की और सुपरसेट की. I can say that B is subset of A. This is how you read it. B is subset of A. C is subset of A. D is subset of A. What about this? E is not a subset of A. F is not a subset of A. And for sure, G is subset of A. In fact, ये तो equal set है नहीं? Yes, sir. दो इक्वल सेट हमेशा एक दूसरे के सबसेट होते हैं. G is a subset of A. So when I say B is subset of A, it basically means that each and every element, अगर कोई element B को belong कर रहा है, it would imply that this element also belongs to A. That is the basic meaning of subset of a set. ठीक है? इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो. B is contained in A, or A contains B. That is the meaning. और अगर B is subset of A, it implies that A is superset of B. Superset में उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. How do you read this? A is superset of B. Or you can say A contains B. ये इसका मतलब है. तो
यहाँ एक चीज पता लग रही है हम लोगों को कि नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा. नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. दूसरी बात, a set will be always subset of itself, है ना? A set will be always subset of itself. कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट डेफिनेटली होगा और नल सेट हर सेट का सबसेट होगा. ठीक है अनुज? Yes, sir. ओके. अब क्वेश्चन ये आता है, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स कैसे लिखेंगे? तो यू रिमेम्बर हमने बायनॉमियल किया था. तुम लोगों ने बायनॉमियल पढ़ा है ना 11th में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बायनॉमियल एक्सपेंशन में यू डिड दिस 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन. याद आ रहा है? पुराना जमाना, गुजरा हुआ साल, सब हमें दोबारा करना पड़ेगा बहुत डिटेल में. दिस इज यू स्टडीड इन 11th. बहुत पुरानी बात नहीं है. 1 + x टू द पावर n इज nc0, nc1x, nc2x², nc3x³ एंड सो ऑन. इसमें अगर हम x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? कितना आएगा लेफ्ट साइड? 2⁻n. इट इज nc0. nc0 का मतलब क्या हुआ? nc0 का मतलब हुआ सेलेक्टिंग नन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. और nc1 हो गया. nc1 का मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. और सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट. और डैश 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 selecting n out of n distinct objects. And that's how you get the formula for number of subsets. किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2⁻n. एंड इस तरह से फॉर्मूला आता है. दिस इज हाउ यू डिराइव दिस. सबसे पहले वो सारे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट. फिर वो सारे सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट है. फिर वो सारे सबसेट जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन. So that's how you get total number of subsets of a given set का formula. ये कहलाते हैं बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स. इस पे भी इस साल एक क्वेश्चन आया था. लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आया था, इस अभी भी आया है. अप्रैल अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन आया है इसका. तो सम ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट हमेशा 2⁻n होता है एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट. जिसे यहां पे अगर मैं सपोज इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट लिखना चाहूं तो कितना होगा वो? 2⁻3, दैट इज 8. तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ही उस रैंडमली मत लिखो. सबसे पहले वो सबसेट लिखो जिसमें कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट. देन वो सारे एलिमेंट सबसेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट आ रहा है. फिर वो सारे सबसेट जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं. 1 2, 1 3, 2 3 एंड फिर वो सेट इटसेल्फ. सो दिस इज हाउ यू राइट सबसेट्स. पहले वो सबसेट जिसमें कुछ नहीं है, नल सेट, बिकॉज नल सेट हर सेट का सबसेट होगा. फिर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट वाले, फिर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट वाले, फिर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट वाले. दैट वेज. इसका नाम तूने सुना है तुम लोगों ने? प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट. कौन बताएगा? अभी का तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज, क्या हुआ? लगता है सो गई है. Yes, sir. क्या हुआ, नींद आ गई थी? No, sir. लग रहा है भाई. Sir, proper sub improper subset तो वो होता है 2⁻n - 1. नहीं होता है क्या है ये? तुमने तो नंबर बता दिया मुझे.
व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? किस सेट को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे? मतलब बाकी वो एक सेट छोड़ के बाकी सारे सबसेट। नहीं, वो तो तुम बता रही हो ना, एक को छोड़ के। मैं कौन से वाले को छोड़ूं? इसको जो छोड़ वो दूं, इसको छोड़ दूं, इसको किसको छोड़ूंगा? 1 2 3, 1 2 3, लाइक 1 2 ए का सेट को 4। छोड़ के बाकी सारे। हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, उसका मतलब ये हुआ, अ प्रॉपर सबसेट इज दैट सबसेट which does not have at least one element present which वो otherwise present in the given set। वो सेट जिसमें, वो सबसेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट प्रेजेंट ना हो जो कि गिवन सेट में है। गिवन सेट में 1 2 3 है, तो उस हिसाब से इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 2 नहीं है, इसमें 1 3 नहीं है। ये सारे के सारे प्रॉपर, ये तो बेचारा बहुत ही प्रॉपर है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ दैट सबसेट विच डज नॉट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज अदरवाइज प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। सिंपल लैंग्वेज में, सेट इटसेल्फ को छोड़ के सारे के सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। बट डेफिनेशन लिख लो। इन अ प्रॉपर सबसेट, in a proper subset, there is at least one element, there is at least one element not present, which is otherwise present in a given set। लिख लिया सब लोगों ने? तो उस हिसाब से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन गए? यस। और एक सेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा। द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट का सेट इटसेल्फ वुड बी इम्प्रॉपर सबसेट। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो तुम लोग अब। मैं कुछ सेट्स लिख रहा हूं, फिर उसके तुम्हें प्रॉपर सब उसके सेट सबसेट बनाने हैं। सेट का एलिमेंट भी सेट हो सकता है, ठीक है? इन सबके सबसेट लिखने हैं, बोर्ड पे भी लिखने हैं, ठीक है? तुम लोग चैट बॉक्स में भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है? ये लोग बोर्ड पे लिखें, तुम लोग चैट बॉक्स में लिख देना आंसर। हो गया पहला? इसको रैंडमली मत लिखो। 1 फिक्स करो, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। वो तरीका होता है, वही बताया ना। 4 में से एक सेलेक्ट किया, एक एलिमेंट वाले 4 बनेंगे। 4 में से 2 सेलेक्ट, 4C2। 4C2 का मतलब 4 इंटू, ओपन 4 2 places बाय 2 factorial, 6। 4C3, 4C3 का मतलब 4C1 ओनली, उसका 4। तुम्हें पता लग जाए कि सिंगल एलिमेंट वाले कितने बने। कॉम्बिनेशन यूज कर लो ना।
4 एलिमेंट हमारे पास हैं, उसमें से हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4C2 हो गया। 4C2 को कैसे सॉल्व करोगे? ओपन 4 2 places बाय 2 factorial। जैसे कि सपोज मेरे को 11C3 निकालना है। 11C3 का मतलब ओपन 11 3 places बाय 3 factorial। तो 2 वाले बनेंगे 6, 3 वाले बनेंगे 4, और सेट इटसेल्फ तो हो ही जाएगा। दो वाले कितने बनाए? देखो सबसे पहले सिंगल वाले हो गए, अब 2 वाले बना लीजिए ना पहले, जिसमें 2 आ रहे हैं एलिमेंट्स। सिंगल एलिमेंट वाले 4 होंगे, एक नल सेट हो जाएगा 0 वाला। 2 एलिमेंट वाले 6 होंगे, 3 एलिमेंट वाले 4 बनेंगे। तो दैट इज हाउ यू राइट ऑल ऑफ देम। मेरा लिख लिया तुमने? चैट बॉक्स में आंसर लिखा अपना? सर लिख बहुत लो। लंबा नहीं है हाँ लिखने वही का। तो, मेहनत करोगे तो तभी तो। सर ऐसे दिखा दूं बस कि कर लिया है। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा क्या? मुझे। चलो ठीक है। हो गए 16 बन गए? नहीं, गरिमा हुआ? तुम्हारा हो गया 16 आ रहा है? हैं? सिंगल एलिमेंट वाले हुए, फिर 2 वाले 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, और फिर 4 3। अब वो तो हो ही जाएगा। 1 2 1 3 1 4 2 4, 1 2 1 3 1 4। 1 सिर्फ 1 को फिक्स करो, 1 2 1 3 1 4। देखो इसको रैंडमली मत लिखो, इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले स्टार्ट करो नल सेट से, जिसमें कुछ नहीं है। 5 से स्टार्ट किया, फिर सिंगल एलिमेंट वाले लिखे, वो कितने हो गए? 4। फिर 2 एलिमेंट वाले मेरे को मालूम है 6 बनेंगे। 6 कैसे बनाओगे? 1 को फिक्स कर दो पहले, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 खत्म। फिर 2 को फिक्स करो, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 खत्म हो गया। फिर 3 के साथ 4, बात खत्म। बिकॉज रिवर्स में लिखने का तो वो पॉइंट नहीं है ना, 1 2 एंड 2 1 इज द सेम ओनली। तो एक बार मैंने 1 को फिक्स किया, 1 के साथ 2 1 3 1 4, फिर 2 फिक्स किया 2 3 2 4, 2 1 नहीं लिखना मुझे, 3 के साथ 3 4 आ गया, बस खत्म। फिर अब 2 3 वाले लिखते हैं। 3 वाले कैसे करोगे? 1 एंड 2 को फिक्स कर लो, 1 2 इकट्ठे, 1 2 के साथ 3, और 1 2 के साथ 4, ये हो गया। फिर 2 3 फिक्स कर दो, 2 3 4 हो गया। फिर 1 3 4 हो गया। इतना इजी है तो मेरे से भी हो गया। और फिर द सेट इटसेल्फ, एंड में सेट इटसेल्फ आएगा, पहला नल सेट, और एंड में द सेट इटसेल्फ विल बी देयर। 16 सबसेट बन गए। अभी का कुछ तुम्हारा मिसप्रिंट हो गया, 92 30। कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की थोड़ी सी। ब्रैकेट भी तुमने कर्ली नहीं लगाया, लेकिन कर्ली ब्रैकेट नहीं है इसमें। फाइन। नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में देखो सेट के अंदर भी सेट हो सकता है, ये सेट है, ये भी सेट है। सो ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 3 ओनली। तो इसके कितने बनेंगे? 8। सबसे पहले स्टार्ट करो नल सेट के साथ, फिर सिंगल एलिमेंट्स, ये हो गया। फिर 2 एलिमेंट 0 के साथ 5, फिर 0 के साथ सेट कंटेनिंग 0 एंड 5, फिर 5 सेट कंटेनिंग 5 के साथ सेट कंटेनिंग 0 5, और फिर द सेट इटसेल्फ, राइट? 0 5 एंड सेट कंटेनिंग 0 5, ये आ गया।
सिमिलरली सी का भी हो जाएगा। सी में सबसे पहले फाइव, फिर सेट कंटेनिंग 0, सेट कंटेनिंग सेट 5, देन दिस, उसके बाद दिस एंड दिस, 0 एंड दिस, देन 0 एंड 5, और फिर सेट कंटेनिंग 5 के साथ 5, and then set itself 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 5 and 5. So that's how you can find, right, all the subset of a given set. Next is power set of a set. लिखो power set of a set. Power set of a set. It is the set of, it is the set of all subsets of a set. It is set of all subsets of a set. कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी सेट का पावर सेट अगर निकालना है तो सबसे पहले सारे सबसेट लिखो, उनको फिर ब्रेसेस में डाल दो। जैसे ए का पावर सेट पता करना है मुझे, तो पावर सेट ऑफ ए को ऐसे लिखोगे, पी ऑफ ए के सारे सबसेट लिखे और उनको सेट में डाल दिया, दिस इज पावर सेट ऑफ सेट। बी का पावर सेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ बी, सारे सबसेट लिखे और उनको फिर सेट में लिख दिया, दैट इज द पावर सेट ऑफ ए सेट। पावर सेट ऑफ सी क्या होगा, पावर सेट ऑफ सी वुड बी ऑल द, कहने का मतलब ये हुआ पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे दिल बी ऑलवेज सेट्स, पावर सेट का हर एलिमेंट सेट होगा। देखो पावर सेट भी तो सेट है ना, लेकिन पावर सेट के अंदर सारे एलिमेंट, दीज आर द सेट्स, ऑल दीज आर सेट्स। Now, if I ask you, what will be cardinal number of a power set? वो कैसे पता करोगे? सपोज किसी सेट का, पावर सेट का मेरे को कार्डिनल नंबर पता करना है, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। जैसे कि एक के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, जितने सबसेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर होगा 16, which is nothing but 2 raised to power 4, which is nothing but 2 raised to power n of a। ये हुआ, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर हमेशा होगा 2 raised to power n of a। इसको जरा गौर से देखो, कोई डाउट है तो बताओ। सेट बी, पावर सेट ऑफ बी ये था, तो पावर सेट ऑफ बी का कार्डिनल नंबर कितना हुआ, देखो 8, which is 2 raised to power 3, which is 2 raised to power n of b। सर तो हो गया? बेसिकली सॉरी सर, वी कुड जस्ट से ना कि पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो ही उस सेट का कार्डिनल नंबर है। नहीं नहीं, उस सेट के सबसेट का नंबर है। हाँ मतलब सबसेट का सब। हाँ राइट। जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 16 एलिमेंट्स होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, वो क्या होगा? पावर सेट, यहां ये एग्जांपल लो, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इसका कार्डिनल नंबर कितना बताया था मैंने अभी, 16। 16। तो अगर इसका कार्डिनल नंबर 16 है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 raised to power 16, right? So number of subset of power set of A would be 2 raised to power n of P of A,
एंड 2 रेज टू पावर n p ऑफ a कितना था? 2 रेज टू पावर n ऑफ a। इसको जरा गौर से देखो, इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सॉर्ट ऑफ a इज 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर na, जिसे na कितना था? na कितना था? 4। इफ आई सब्स्टिट्यूट 4 हियर, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा 16, तो 2 रेज टू पावर 16, राइट। एक नंबर याद कर लेना, 2 रेज टू पावर 10 इज ऑलवेज 104, काम आएगा अक्सर ये। 2 रेज टू पावर 10 104 होता है। 2 रेज टू पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। 2 रेज टू पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 एंड सो ऑन। जैसे स्क्वायर्स याद कर लेना, 19 स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक। 19 स्क्वायर 381. 361, अच्छा 60. ठीक है। 18 स्क्वायर वहां बैठ के थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट उसमें लग जाएगा, 324. 324। 26 स्क्वायर, ये स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। 30 तक सारे स्क्वायर या पता होने चाहिए, बिकॉज एवरी माइक्रो सेकेंड विल काउंट इन द एंट्रेंस। एक बार शुरू से लेके अब तक जो हमने किया उसको रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Operations on sets. The first one is union. A union B is basically X such that X belongs to A or X belongs to B. The symbol is for OR. A union B is X belongs to A और X belongs to B. अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B का है तो या तो वो X को A को बिलोंग करेगा या B को, या दोनों को बिलोंग कर सकता है। For example, if we have A is equal to 1, 2, 4, B is equal to 2, 4, 5, 6, 7. So A union B would be basically all those elements which either belongs to A or B. तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखेंगे एंड द ऑल अदर एलिमेंट्स।
That is A union B. Whenever you find union of sets, आंसर या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, ठीक है? यूनियन ऑफ टू सेट ऑलवेज गिव यू बिगर आंसर. एक होता है यूनिवर्सल सेट. What is universal set? A set which is superset of all the sets under consideration. अगर किसी क्वेश्चन में कई सारे सेट्स हैं तो उन सबका superset will be universal set. It is represented by U. A set which is superset of all the sets under consideration is universal set. जैसे यहाँ पे if I want, I can write universal set to be natural numbers 1 to 10, है ना? तो 1 to 10 इसको भी कंटेन करेगा, 1 to 10 इसको भी कंटेन करेगा. So that's universal set. एक बात बताओ मुझे, what will be A union A? What will be A union phi? What will be A union universal set? For any set in general, अगर कोई सेट A है तो उसका यूनियन उसी के साथ क्या होगा? Itself in, ठीक है? किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ कितना होगा? A. यूनिवर्सल सेट के साथ, बिकॉज ऑलवेज गिव द बिगर आंसर. यूनियन से हमेशा इक्वल आंसर आएगा, बड़ा आंसर आएगा, बड़ा सेट आएगा. वन मोर थिंग, इफ आई राइट A union B is equal to B, what can you say about A and B? अगर A union B B के इक्वल है तो A B में क्या रिलेशन हो सकता है? A is contained in B. यस, B बड़ा है ना? तो यूनियन से हमेशा बड़ा आंसर आता है, तो B सेट बड़ा होना चाहिए. तो B इज सबसेट ऑफ, नहीं उल्टा हो गया, A is subset of B. It implies that A is subset of B because A union B gives bigger set. तो B बड़ा सेट है, तो अगर इक्वल भी हुआ तब भी वो सबसेट तो होगा ही. तो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स. Next is intersection. इंटरसेक्शन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A intersection B, this is a symbol, inverted U, X such that X belongs to A and X belongs to B. This symbol is for AND. Inverted V is symbol for AND. X belongs to A, मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है. इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स का आंसर होगा. जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में व्हाट विल बी इंटरसेक्शन बी? Those elements which are part of A also and B also. 2 2 and and 4. 4. That is, intersection always give you smaller set. Answer of intersection would be the smaller set. Tell me, what is A intersection A? What will be A intersection phi? What will be A intersection universal set? बताओ. A intersection A होगा, ठीक है. छोटा सेट फाई होगा और ये A हो जाएगा. परफेक्ट. एक और चीज, if A intersection B is B, what can you say about A and B? इंटरसेक्शन से हमेशा छोटा आंसर आता है. B छोटा सबसेट हो गया ना. इंटरसेक्शन गिव्स यू ऑलवेज स्मॉलर सेट. B out of A and B छोटा है, तो B is subset of A. देख लो, सोच लो,
कोई डाउट है तो पूछ लो, बेझिझक, बेधड़क। दिस क्लियर? So this is A intersection B. तो ऑपरेशन यूनियन इज फाइन, इंटरसेक्शन इज ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सेट ए डिफरेंस बी। इसको ए माइनस बी मत रीड करना, इट इज ए डिफरेंस बी। एलजेब्रा में यू हैव ए माइनस बी, बट यहाँ पे सेट्स में इट इज ए डिफरेंस बी। इसका मतलब हुआ x such that x belongs to A and x does not belong to B। कहने का मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। इसको हिंदी में नीचे लिख लो, which are not in B। Those elements of set A which are not in B, that is the meaning of A difference B। एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ए क्या लिया था पिछली बार मैंने? 1 2 3 4 1। चलो डिफरेंट कर लेते हैं इस बार। बी मान लो 2 4 5 6 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए डिफरेंस बी क्या होगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं, कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? 1, 3. 1 3। सो ए डिफरेंस बी आ गया 1 3। सिमिलरली बी डिफरेंस ए कितना होगा? बी के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। बी का 5 इसमें नहीं है, बी का 6 6, नहीं है, 7. 7 नहीं। 5 6 5 6 7। So that is the meaning of difference. There's something called symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets. Anyone? किसी को आइडिया क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? बताओ मेरा। सर इट्स बेसिकली ए, फिर वो ट्राइंगल सिंबल का नाम नहीं पता, एंड बी, जिसमें वी टेक द एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए एंड बी बट नॉट इन द इंटरसेक्शन पार्ट। Okay. So basically you mean this A delta B, A symmetric difference B is A difference B union B difference है। यस सर। ठीक है? So this is called symmetric difference of two sets. Symmetric difference of two sets को डेल्टा से रिप्रेजेंट करोगे, and it is A difference B यूनियन B difference है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में A डेल्टा B कितना हो जाएगा? It would be 1 3 5 6 7। That is a symmetric difference. काफी टाइम बाद 2 घंटे क्लास हो रही है तुम्हारी, लग रहा है। नहीं, सभी लोग थक गए हैं सब। नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को ये राइट
A prime or A complement like this. And it is universal set difference है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब वो एलिमेंट्स जो कि उस सेट में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है ना. Those elements of universal set which are not in A. और किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, द सेट इटसेल्फ हो जाएगा. तो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट जो ए में है, वो उनको हटा दो, द रिमेनिंग वुड बी द कॉम्प्लीमेंट. टेल मी व्हाट विल बी फाइव कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा? व्हाट शुड बी फाइव कॉम्प्लीमेंट? The whole set itself. यूनिवर्सल सेट. यहां देखो, फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस फाइव. सो फाइव का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट, राइट? यूज द फॉर्मूला. अगर कंफ्यूजन है तो फॉर्मूला यूज कर लो. एक ही जगह फाइव आ गया. अब बताओ यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस यू. Null set. यस, यू माइनस यू जीरो नहीं होगा. ठीक है. So these are the operations on a set. Next is Venn diagram. Venn diagrams will be very useful in probability also. कई सारे questions probability के हम Venn diagram से solve कर पाएंगे. So in Venn diagram, universal set is represented by a rectangle. और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ड्रॉ अ सर्कल और एन एलिप्स. जैसे कोई सेट ए है तो उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स बाहर हो जाएंगे. ठीक है. तो अब मैं एक काम करूंगा, आई ड्रॉ सम पोर्शन, आई हाईलाइट सम पोर्शन ऑफ द सेट, और तुम्हें उसको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर. बताना है उसका आंसर क्या होगा. देयर इज नो हरी, आराम से करो. I'll shade the portion and you need to tell me, write the answer in terms of cardinal number, right? लिखते जाओ अपना आंसर. एंड में डिस्कस कर लेंगे. एक के कई सारे आंसर भी हो सकते हैं.
कार्डिनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे ये वाला था, आई राइट दिस एज, इसका आंसर होगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है राइट, है ना। रैन, इसके अलावा और भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो भी लिख सकते हो। मेरा राइट, अविका फाइन। जो फोर्थ है, फोर्थ का क्या क्या आंसर हो सकता है? फोर्थ का एक आंसर हो सकता है एन ऑफ ए, वो डिफरेंस होता है ना बेसिकली। इसको ऐसे लिखो ना फिर, एन ऑफ ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यू कैन राइट दिस वे। ए ए ए के वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। और इसके अलावा कुछ और हो सकता है? N of A difference B बस। एन ऑफ ए, Difference B। ये भी हो सकता है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? जरा चेक करो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको समझते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर का, बी कॉम्प्लीमेंट है बी के बाहर, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, यही आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर का और उसके साथ ए का कॉम्प्लीमेंट। ये भी काफी यूजफुल है रिजल्ट। ये तो तुम्हें मालूम ही क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिक्स्थ वाले का फोर्थ के सिमिलर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ए और बी को इंटरचेंज, इन तीनों आंसर में ए और बी को इंटरचेंज कर दो, है ना। ठीक है। व्हाट अबाउट सेवेंथ? यू कैसे हो गया सेवेंथ?
N of A union B. जो मैंने शेड किया है वो बताओ। सेवेंथ का आंसर, कई सारे आंसर होंगे। एक तो हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, लेकिन ऐसे लिखने से डबल काउंटिंग हो गया इस वाले पार्ट का, तो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। एन ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज किया था तुमने लास्ट ईयर 11th में, एन को पी डाल के प्रोबेबिलिटी बन जाता है। इसका एक और आंसर पॉसिबल है, एन ऑफ ए डिफरेंस बी, इतना पोर्शन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला कॉमन वाला, प्लस एन ऑफ बी डिफरेंस ए, थर्ड वाला पार्ट, दिस एंड दिस। सर अगर हम प्लस की जगह यूनियन का साइन लगा दे तो? नहीं, हम कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, ये हम सेट्स में नहीं कर रहे। सेट होता ना तो फिर मैं यूनियन लिखता। ये ओके सारे सर। नंबर्स हैं, कार्डिनल नंबर्स हैं। ओके सर। एट्थ में क्या होगा फिर? N of union minus A union B plus A common B intersection B, sorry. देखो, N of अगर A delta B का whole complement. अगर मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या मिल रहा है? इसके बाहर का सारा हो गया। एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इसके बाहर का सारा हो गया, लेकिन फिर ये वाला मिस हो रहा है, तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, एक तो ये आ गया। और बताओ और क्या हो सकता था? किसने बोला ए डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. वो भी बिल्कुल सही जवाब है। ए डेल्टा बी, एन ऑफ ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डेल्टा बी एग्जैक्टली ये और ये था, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस एंड दिस, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो भी बिल्कुल सही था। नाइन्थ में क्या हो रहा है? ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज द नाइन्थ वन। अब आज की क्लास में जो हमने सारा किया वो एक बार पढ़ो दोबारा से, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। छुट्टी नहीं हो रही अभी, बैग वैग मत पैक करो। Go through everything we have done today. Make a rule that whatever you study in the class, same day you revise it. चाहे उसको 10-15 मिनट में देख लो, आधे घंटे के लिए देख लो, बट उसको सेम डे रिवाइज करोगे तो हर चीज फ्रेश रहेगी दिमाग में। वैसे ये तो वैसे बहुत इजी चैप्टर है, स्टिल वी कांट डिस्काउंट दिस चैप्टर बिकॉज इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। एक बार पूरा रिवाइज कर लो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एट्थ में इरा सेज एन यू minus A intersection B. You're saying n of universal set difference A intersection B. एट्थ का ये आंसर हो सकता है, बताओ, ईरा पूछ रही है। n of universal set difference A intersection B, ये नहीं होगा बिकॉज सर सॉरी, कुड इट बी यूनियन? गलती से। ये वाला, ओके लेट्स सी, ये हो सकता है क्या? यूनिवर्सल में जब A यूनियन B करोगे तो ये चला जाएगा, दिस विल नॉट बी, ये भी हट जाएगा ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। ए यूनियन बी ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला आएगा सारा, ठीक है। अगर उसको मैं टेंथ लिख दूं, टेंथ मान लो मैंने ये बना दिया टेंथ,
जो तुम बता रही हो वो ये है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ये, ठीक है। So I should have added इसमें intersection भी, तो हाँ, फिर वो सही हो जाता। राइट राइट राइट। हम्म। इसको कैन आई कॉल दिस 10th वन n of a complement intersection n of b complement? जरा सोचो, 10th वाले को मैं n of a complement प्लस होना चाहिए ना, ये ऐसा कुछ हो सकता है क्या ये? नहीं नहीं, n of this 10th one, is it like this or not? A intersection b whole complement हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। Will it be like this? A complement intersection b complement, Yes, sir. ये हो सकता है ना? अनुज सही है, डी मॉर्गन्स लॉज। ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर का पूरा, और फिर बी के कॉम्प्लीमेंट का बाहर का। फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फिर एन ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। हाँ वो तो यही हो गया ना, यस। वो तो सेम थिंग, ये वाली बात हो गई। दिस एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यस सर। इज सेम एज दिस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास का एजेंडा होगा रिलेशन, फंक्शन, एंड बहुत डिटेल में होगा आगे वाला, बिकॉज फंक्शन काफी, रिलेशन जब हम डिस्कस करेंगे 11th का रिलेशन भी करेंगे, 12th वाला भी करेंगे, ठीक है, एंड little extra as well. So I'll see you on Tuesday. Ending the Okay. class now. Keep revising. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर। sir.